Hello students, I am Ankit Kumar and in the previous lecture I discussed about the electrostatic charges and electric force. Now in this chapter I will discuss about the electric field and please give me the comment if you like my previous lecture and carry on the second one. This is the notes based lectures. Uh, Through these lectures you can revise your syllabus in time of exam point of view in very few time, or it is a fast revision, so you can also use that lectures at the time of your exams. Okay, let's start. Electric field. The concept of electric field due to a given charge as the space around the charge in which electrostatic force of attraction or repulsion due to the charge can be experienced by the other charge. As we know that if the charges are same, they will repel to each other, and if the charges are different, they will attract to each other. If any charge is feeling attractive or repulsive force in a medium, this medium is known as the electric field. Electric field intensity at any point is the strength of the electric field at that point, or we can also say that it is also defined as the force experienced by a unit positive charge placed at that point. So E vector is equal to F vector divided by Q naught. As we shown in the figure, there is a direction of electric field. If there is a positive charge occur, then the direction of the force and electric field will be same. If the charge is negative, then the direction of electric field and force will be different, and that is very important concept for the above lectures. Okay, the force on positive charge is always in the same direction of electric field, whereas the force in the opposite direction to the electric field for negative charges. For example, एक क्वेश्चन लेते हैं. Calculate the force on an electron in a uniform electric field is this due to the north. तो चार्ज आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, हमको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फोर्स फाइंड आउट करना है. तो फोर्स कितना होगा? एफ इज इक्वल टू क्यू ई. जस्ट फॉर्मूला पुट करो और डायरेक्शन कहाँ होगी आपकी? साउथ में होगी, क्योंकि आपका चार्ज कैसा है? निगेटिव है. इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ में था, चार्ज निगेटिव है, तो वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी. दैट मीन्स डायरेक्शन विल बी साउथ. नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. Let we have a point charge at point O, and this charge is Q, and we want to find the electric field at point P. So we will use the Coulomb's law of force या Coulomb's law of electrostatic. The F कितना होता है? 1/4 pi epsilon naught Q divided by R naught, where R naught cap is the direction of the field, direction of the force, and it is given by R naught cap is equal to R naught divided by R naught magnitude. As we know, the electric field intensity is F by Q naught, then 1/4 pi epsilon naught Q by R naught का whole square and R naught cap. Here जो Q naught है, ये आपका होता है टेस्ट चार्ज. और इलेक्ट्रिक फील्ड की हम इस फॉर्मूले से एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना आपको वर्क डन करना पड़ता है, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. तभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं. E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर नॉट का कैप. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें वेक्टर की फॉर्म में चाहिए तो फॉर्मूला वही रहेगा जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ा है. जस्ट जो अबाउ Q1 Q2 था उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? ओनली सिंगल Q. अदरवाइज आपका फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहने वाला है, ठीक है. सो यहाँ पे आपने देखा भी है E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 का क्यूब कितना होगा? Q ब्रैकेट R2 माइनस R1. तो कोई चेंजेस नहीं होंगे. सेकंड कॉन्सेप्ट लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस. अगर हमको निकालना है, आपके बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है, दैट इज Q1 Q2 Q3 टिल Q1. तो इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वही आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और हम उसको कह सकते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 En. जस्ट पुट अप द फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 का होल स्क्वायर R1 कैप प्लस
1 over 4 pi epsilon naught q2 divided by r2, r2 cap and so on. Just we will add all the quantities with algebraic sign, or we can say that we will add all the electric field with their magnitude and their direction. That will be the resultant magnetic field for a group of charges. Okay, now that electric field line, an electric field line is a path, straight or curve in electric field such that tangent to it at any point gives the direction of the electric field intensity at that point. Okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, जस्ट एक पाथ हो सकता है, एक कर्व पाथ हो सकता है, अगर उस पर हम कोई भी टेंजेंट को ड्रॉ कर लेते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा उस पॉइंट पर. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड starts from the positive charge and ends in the negative charge. तो पॉजिटिव चार्ज से क्यों क्या होगा, अवे, नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड, अगर पॉजिटिव नेगेटिव पास पास रखे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव पर जाके वो एंड हो जाएगा. ठीक है, ये कर्व भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं. डेंसर द इलेक्ट्रिक फील्ड मोर लाइन विल बी, अगर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो डेंसर होगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व, वो क्या है आपके कॉन्टिन्यूअस कर्व होते हैं. नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, अगर उसने किया तो एक प्लेस पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है. क्यों होती है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर टेंजेंशियल कंपोनेंट हमेशा जीरो होता है, केवल नॉर्मल कंपोनेंट ही लाई करता है. इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस separated by some small distance. The distance should be very small and the two charges should be opposite. One should be positive and other should be negative. So total charge on the dipole is minus q plus q is equal to 0. Okay, if somebody say that find the total charge for an electric dipole, it is always 0 because positive and negative charge are equal in magnitude but opposite in sign. एग्जाम्पल इसका HCl हो सकता है, H2O हो सकता है, एक्सेट्रा. डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज टू द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो मैग्नीट्यूड कितना होगा डाइपोल मोमेंट का, Q इंटू 2a, तो 2QA. इट मीजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. सेकेंड, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. अब इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन कहां से कहां होगी. द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. सो क्या डिफरेंस है, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, बट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, जो कि अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की. ये आपको याद रखना है. द चार्ज 20 नैनो कूलम आर सेपरेटेड बाय 5 मिलीमीटर. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट. मैग्नीट्यूड निकालना है तो P कितना होगा, 2QA. तो कितना हो जाएगा 2, आप Q की वैल्यू आपको पता है, 2A की आपको वैल्यू पता है, आप उठ करके आंसर निकाल सकते हो. डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरह. ओके, तो डाइपोल फील्ड, इट इज द स्पेस अराउंड द डाइपोल इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल कैन बी एक्सपीरियंस. तो ये होगा आपका डाइपोल फील्ड. जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता था इसी तरह डाइपोल फील्ड होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन. अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. ओके ओके, तो फर्स्ट इज नेगेटिव चार्ज प्लस q charge. We want to find the electric field due to dipole at point P, and the distance from O to P is A plus R. The distance of point P from the middle of the dipole is given by R. So we can say that electric field due to negative charge, negative q charge, the distance will be R plus A, and the distance for positive q charge, it will be total R minus A, that will be R minus A. तो यहाँ पर हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे. पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R माइनस A का होल स्क्वायर. और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R प्लस A.
चार्जेस दोनों सेम है बट डिस्टेंस का डिफरेंस है। पॉजिटिव के लिए r माइनस ए होगी क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस है, और ई के लिए कितना हो जाएगा r प्लस ए हो जाएगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस में से माइनस, मतलब जो वैल्यू ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपको मिल जाएगा। इसमें आपने q और 4π कांस्टेंट है, आपने कॉमन ले लिया, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, आपने इसका एलसीएम लिया और उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लिया, यहाँ से आर स्क्वायर स्क्वायर कट जाएंगे, ये आपका फॉर्मूला आ गया। इफ वी हैव assume that r is very greater than a is the distance between two charges of a dipole, as we know that if two charges are separated for a very small distance then only it makes a dipole. So r will be very greater than a, so e is equal to q by 4 pi epsilon naught एंड 4ra डिवाइड बाई r की पावर 4, एक r से r कट जाएगा तो r की पावर 3 हो जाएगा, और 2qa को क्या कह सकते हैं हम, p कह सकते हैं, तो e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाई r क्यूब। ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाई r क्यूब। ठीक है, और ये हमेशा क्या होगी, अवे फ्रॉम द डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, ये ध्यान रखना है आपको, अवे होगी। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो चार्ज लिया है, this one, it is positive and it is negative, the direction will be toward the dipole. Okay, चलो, what will be the cause of the charging, the charging क्या होते हैं, the transfer of electron from one body to another, चार्ज हो जाएगी बॉडी, अगर एक पॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी पर चले गए, दैट मीन्स जिससे निकले हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस पर गए हैं इलेक्ट्रॉन्स वो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमें किस पे निकालना है, इक्वेटोरियल लाइन। यहाँ पे आपका एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है, और इस डाइपोल से r डिस्टेंस अबव एक पॉइंट P है जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, निगेटिव चार्ज का 2r होगा, तो ई निगेटिव की डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, निगेटिव चार्ज q की तरफ। इसी तरह बी पर कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे होगी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, एक कंपोनेंट इसका ऊपर की तरफ होगा ई प्लस साइन थीटा, और इसका नीचे की तरफ होगा ई माइनस साइन थीटा। सिमिलरली इनका एक एक्स एक्सिस में कंपोनेंट होगा ई प्लस कोस थीटा, और इसी डायरेक्शन में होगा आपका ई माइनस कोस थीटा। अब यहाँ से हम सिंपली कह सकते हैं ई प्लस कोस थीटा और ई माइनस साइन थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ई प्लस कोस थीटा और ई माइनस कोस थीटा सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पे, माइनस क्यू की वजह से तो हमें एक डिस्टेंस चाहिए ए से पी तक की डिस्टेंस, तो पाइथागोरस की हेल्प से हम ए पी डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे, और ये ए पी डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, बी पी डिस्टेंस के इक्वल होगी, तो ए पी और बी पी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर आपने फॉर्मूला यहाँ पे जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ई निगेटिव इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय ए पी स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाय ए पी कितना है, ए प्लस आर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, बट इसका स्क्वायर वो अंडर रूट हट जाएगा, तो सिंपल आएगा क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिमिलरली आपका ई पॉजिटिव चार्ज होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई बीपी का होल स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एज वी नो दैट ई नेगेटिव एंड ई पॉजिटिव आर सेम, तो आपका जो टोटल ई एक्स एक्स एक्सिस में होगा क्या होगा, दोनों जस्ट एड अप हो जाएंगे, 2e cos थीटा है ना, e प्लस cos थीटा e माइनस cos थीटा एड अप होने के बाद 2e प्लस cos थीटा, जस्ट आपने वैल्यू रखनी है, e प्लस और e माइनस बराबर है, जस्ट वैल्यू आपने पुट कर दी है। तो आपको निकालना है cos थीटा, इट इज द थीटा एंगल, इट विल बी cos थीटा कितना होगा, a डिवाइडेड बाय ए पी डिस्टेंस, तो cos थीटा कितना हो गया, a डिवाइडेड बाय ए पी कितनी डिस्टेंस, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, जस्ट आपने यहाँ पे पुट कर दिया और इसको सोल्व कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आर इज वेरी ग्रेटर देन ए, और जो 2 पर कितना था, क्यू ए और 2 क्यू ए को क्या लिख देंगे आप, पी। फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपका, ई इज इक्वल टू पी डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और ई वाई कितना होगा, ई प्लस साइन थीटा ई माइनस साइन थीटा, हमको पता है ई प्लस और ई माइनस क्या है, इक्वल है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ई वाई डायरेक्शन में जो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0, और तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर का अंडर रूट, आपने जस्ट इसको अंडर रूट करके सोल्व कर लेना है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, माइनस एक्स डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे आप अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो पी के पहले
माइनस साइन आ जाएगा। और यहाँ पे कह सकते हो अगर मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालो एक्सियल और इक्वेटोरियल का तो उसकी वैल्यू हमेशा 2 आती है। ठीक है, अब आपको याद रखना है पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। और डाइपोल के लिए ये क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल, दैट मींस अब हमें क्या निकालना है, एक पॉइंट पी है जो ना तो एक्सियल पॉइंट पर है और ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट पर है। वो क्या कर रहा है, वो पॉइंट पी उस डाइपोल के साथ कोई एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो उस केस में इसके क्या कंपोनेंट होंगे, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट पी पर उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो एक्सियल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन और 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब, और इक्वेटोरियल क्या हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन p sin थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये हम दोनों प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा क्यों है हमें चेक करना है। इक्वेटोरियल प्लेन होता है किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, तो इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में क्या होगा, cos थीटा में ब्रेक करेंगे। और जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा कितना होगा, जस्ट sin थीटा से आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर। जस्ट आपको फॉर्मूला यहाँ पे सोल्व करना है, जो कॉमन पार्ट है उसको कॉमन ले लिया है, अंदर क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप फिर सोल्व करोगे तो आ जाएगा p डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। वैसे ये जो डायरेक्शन हम कर रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सियल और इक्वेटोरियल प्लेन ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अगर हमें डायरेक्शन निकालने तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स nl डिवाइडेड बाय kl, और हम इसे लिख सकते हैं km डिवाइडेड बाई kl। और इस डिस्टेंस कितनी हो जाएगी tan थीटा, और उसको हम डिवाइड कर देंगे बाई 2। ठीक है, तो डायरेक्शन कितनी होगी, अल्फा tan इनवर्स tan थीटा डिवाइडेड बाई 2। इफ थीटा इज 0, अगर आप यहाँ पे थीटा 0 पुट करते हो तो cos थीटा की वैल्यू कितनी 1, तो कितना आ गया 2p। यही होता है हमारा एक्सियल का फॉर्मूला। अगर आपका एंगल 0 है तो वो कौन सा होगा, एक्सियल फॉर्मूला होगा। सिमिलरली केस 2, अगर यहाँ पे आपने थीटा को कितना पुट किया 90, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो वो कौन सा प्लेन होता है आपका, इक्वेटोरियल प्लेन। इसी तरह आप अल्फा भी निकाल सकते हो, अगर आपका इक्वेटोरियल प्लेन है तो अल्फा की वैल्यू रखो 0, तो कितना आएगा, इक्वेटोरियल के लिए अल्फा 0 होना चाहिए। और इसी तरह अगर आप 90 पुट करते हो तो कितनी हो जाएगी tan 90। ठीक है, tan 90 यहाँ पे गलत रोका है, tan 90 होता है आपका 1 डिवाइडेड बाय 0, कितना हो गया इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी आएगा। और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है 90, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 90 आएगी, गलत हो रहा है इसको ठीक कर लेना। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 90। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अब जो आपका चार्ज है वो एक पॉइंट पर कंसेंट्रिक ना होके एक रिंग की फॉर्म में है और उसकी आउटर बाउंड्री पर सारा चार्जेस आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना चार्ज रख, हमने लेट कर लिया कि जो रिंग है आप उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। आप लेट कर सकते हो जैसे कि आपकी रिंग अंगूठी होती है ना, उसके बाउंड्री पर आपका सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उससे ऊपर उसके परपेंडिकुलर कहीं आप पी पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अगर हम कोई पॉइंट ए से है उस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, डीई, डीई मतलब इस पूरी रिंग के एक छोटे से पार्ट्स, जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है दैट इज डीई, और उसके दो कंपोनेंट होंगे डीई कॉस थीटा और डीई साइन थीटा। कॉस थीटा हमेशा एक्स एक्सिस में होता है और साइन थीटा हमेशा वाई एक्सिस में होता है। ठीक है, तो यहाँ से ए बी जो हमने स्मॉलेस्ट डिस्टेंस लिया उसकी जो लेंथ लेट की है वो कितना है डीएल, उस रिंग के स्मॉलेस्ट पार्ट की डिस्टेंस कितनी है डीएल। चार्ज कितना हो जाएगा उस एलिमेंट पे, सिंपल यहाँ पे आपको लगाना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है 2 पाई ए, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी 2 पाई ए, तो 2 पाई ए पर कितना चार्ज है क्यू। ठीक है, तो 1 पे कितना हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई ए, बट हमें कितनी डिस्टेंस पे निकालना है डीएल डिस्टेंस पे निकालना है, तो इसे डीएल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा डी क्यू चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो डी क्यू जो चार्ज होगा दैट विल बी क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई ए इंटू डीएल। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है, डी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाई सी पी स्क्वायर। तो ट्राइंगल में क्या होगा सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। जस्ट आपने यहाँ पे कौन सा सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा ओ पी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, यहाँ पे आपने पुट कर दिया। ओ सी स्क्वायर कितना है आपकी रेडियस ऑफ द रिंग, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो जो वैल्यू आपकी सी पी स्क्वायर तो इसमें पुट कर दी।
तो डी कितना हो जाएगा 1/4 डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है केवल ए बी डिस्टेंस के लिए निकालना है, अगर हमें पूरी सर्कमफ्रेंस के लिए निकालना है तो क्या करना होगा, हर ए बी स्मॉल डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना होगा, उसको समीशन करना पड़ेगा, या हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें होगा डी ई कॉस थीटा। साइन थीटा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, केवल कौन सा कंपोनेंट बचेगा, डी ई कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा कितना होगा, ये एंगल थीटा है, थीटा कितना हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो वो वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर दिए और इसको सोल्व कर लिया। अब ये समीशन लगाना है, ठीक है। समीशन डी क्यू की वैल्यू अभी हमने पीछे फाइंड आउट की थी, कितनी होती है, क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई ए इंटू डीएल, वो आपने पुट कर दिए। ये सारे कांस्टेंट पार्ट है, समीशन कहाँ चले जाएगा, डीएल पे। डीएल क्या है यहाँ पे, अगर आप पूरी लेंथ का समीशन करोगे तो क्या बनाएगा, वो सरकमफ्रेंस बनाएगा। तो सरकमफ्रेंस कितने, 2 पाई से कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई क्यू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो ये कब है, ये रिंग के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज अलोंग द एक्सिस पी एक्स एक्सिस। केस 1, अगर आपकी जो आर है, मतलब अगर आपको जो रिंग है उसके ही सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आर को 0 रखोगे, 0 रखते कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 0। तो यहाँ से पता चला है कि किसी भी रिंग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये हम कह सकते हैं कि किसी भी रिंग के जो अंदर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग विल बी 0। अगर इफ आर इज ग्रेटर देन ए, अगर आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो आर ए हम यहाँ पे लीव कर सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये सेम वही फॉर्मूला है जो एक पॉइंट चार्ज के लिए था। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी आर 0 है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा रिंग के, अगर आपकी आर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो वो रिंग भी एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगी, ठीक है। अब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होगा, अब एक पॉजिटिव भी चार्ज है, निगेटिव भी चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर कैसे फोर्स लगेगा, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। जो निगेटिव है उस पर किसमें लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। और हमें पता है जब किसी बॉडी पर के एक पॉइंट पर या एक सिरे पर या एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरे पॉइंट पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस तरह के फोर्सेस को बोलते हैं कपल फोर्स। कौन सा फोर्स, कपल फोर्स। और कपल फोर्स हमेशा क्या जनरेट करता है, टॉर्क जनरेट करता है, ठीक है। यहाँ पे इसमें लिखा है द फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज QE which works in the direction of electric field, force on the are equal but working in the opposite direction. This cause is known as the couple force, or couple force always generates a torque. So torque force into perpendicular distance F into AC. तो ट्राइंगल के लिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, ये आपकी फोर्स हो गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, AC है। AC आप इससे फॉर्मूले से निकाल सकते हो, तो ये एंगल थीटा हुआ, AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा AB इंटू साइन थीटा। AC कितना हो जाएगा आपका, AB साइन थीटा। देखो ये वाला जो एंगल है, ये मिडिल पॉइंट जो बना रहा है थीटा एंगल है, तो ये जो एंगल है B, जहाँ पर पॉइंट B है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा आपका, इसमें मेंशन नहीं है। तो ये वाला एंगल आपका थीटा होगा, कौन सा, B किस किस के बीच में, AB और BC के बीच वाला जो एंगल होगा वो होगा आपका थीटा, ठीक है। तो ये एंगल थीटा होगा, तो यहाँ पे साइन थीटा आप निकाल सकते हो। साइन थीटा कितना हो जाएगा, AC डिवाइडेड बाई AB, या आप कह सकते हो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB साइन थीटा, वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है, AB साइन थीटा। AB की वैल्यू कितनी है, एक डायपोल के बीच की डिस्टेंस 2a होती है, 2a साइन थीटा। तो फोर्स टॉर्क कितना हो जाएगा आपका, फोर्स है आपका QE, तो टोटल टॉर्क कितना निकल जाएगा, QE इंटू 2a साइन थीटा। तो टॉर्क हो गया आपका 2QAE साइन थीटा। 2QA कितना होता है, मोमेंटम होता है, टॉर्क हो गया P साइन थीटा, और हम यहाँ पे कह सकते हैं P क्रॉस E, इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं क्योंकि टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे केसेस बन सकते हैं, अगर थीटा 0 है तो टॉर्क 0 होगा, मतलब ये कौन सी पोजीशन होगी, इसकी स्टेबल पोजीशन होगी। इफ द एंगल बिटवीन द डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, then the dipole will be in a stable position.
अगर थीटा आपका कितना है 180 डिग्री है तो टॉर्क कितना होगा, पी ई साइन 180, 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो टॉर्क आपका 0 होगा और वो कौन सी पोजीशन होगी उसकी, अनस्टेबल पोजीशन। ठीक है, थर्ड क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, अगर आपका थीटा 90 है तो साइन 90 1, तो इस केस में आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा और इसमें हम कहेंगे द टॉर्क विल बी मैक्सिमम इफ द डाइपोल मोमेंट एंड if the dipole and its electric field, sorry, if dipole and electric field are perpendicular then the torque will be maximum। ये तीनों कंडीशंस पूछी जाती है एग्जाम में कि स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा और मैक्सिमम टॉर्क कब जनरेट करेगा। ठीक है, तीन कंडीशन है, तीन केसेस आपको अच्छे से मेमोराइज करने हैं, ये आप उसको समझ लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। द चार्जेस 1000 कूलम आर सेपरेटेड बाय दिस dipole in is so formed it have an angle of 30 degree with uniform electric field of 15 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क। क्यू हमको गिवन है, 2 हमको गिवन है, थीटा भी हमको गिवन है। टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा 2 क्यू ए साइन थीटा, सब वैल्यूज आपको गिवन है, यहाँ से आप सिंपली टॉर्क आप निकाल सकते हो। अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें निकालनी है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इज द एनर्जी possessed by a dipole due to its position in the electric field। देखो दो तरह की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कभी भी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी, जीरो होगी। क्यों होगी जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्टेशनरी चार्ज की वजह से ही जनरेट होता है। मूविंग चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। उसके लिए कौन सा फील्ड जनरेट होता है, मोस्टली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसलिए आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम केवल कौन सी एनर्जी पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी उस केस में, जीरो हो जाएगी। हम उसको फाइंड आउट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड केवल स्टेशनरी चार्जेस के लिए ही जनरेट होता है। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी इसलिए से हम ये भी बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक मींस स्टेबल, रुका हुआ। ठीक है ना। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आपकी, सो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय ए डाइपोल ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी कब निकलेगी, उसकी पोजीशन की वजह से। पोजीशन से क्या निकालेंगे हम, उसका वर्क डन। तो वर्क डन का जैसे फॉर्मूला होता है, आप सिंपली लीनियर और सर्कुलर के केसेस में सिंपली आप लर्न कर सकते हो। लीनियर में जो v होता है, सर्कुलर में वही काम म्यू करता है। लीनियर में जो एक्सेलरेशन a होता है, सर्कुलर में एक्सेलरेशन अल्फा होता है। लीनियर में जो डिस्टेंस x होती है वो उसमें क्या होता है, थीटा होता है। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है। लीनियर में जो काम मास करता है, एंगुलर में वो काम कौन सा करेगा, आई। क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर में जो काम फोर्स करता है, सर्कुलर में वो काम क्या करेगा, टॉर्क करेगा। तो जैसे कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है लीनियर के केस में, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो सर्कुलर के केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका टॉ डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एंगल के लिए हमें निकालना है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे दो एंगल के बीच में, थीटा 1 से थीटा 2। तो पी साइन थीटा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। एंगल कहाँ से कहाँ चेंज होंगे, थीटा 1 से थीटा 2। आप यहाँ पे पुट कर दो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो वर्क डन कितना हो गया, पीई ब्रैकेट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी पी माइनस जो साइन था वो अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, अगर आप माइनस साइन बाहर ले रहे हो तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। यहाँ पे केसेस बनेंगे, अगर आपका इनिशियली थीटा 0 था और बाद में हम उसे सेट करते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर, तो थीटा 1 0, फिर कितना हो गया, थीटा हो गया। आपको पुट करना है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो न्यू कितना, u कितना हो जाएगा, माइनस पी cos थीटा माइनस 1। तो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द डाइपोल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप डाइपोल पे जो भी वर्क करोगे वो उस डाइपोल में इलेक्ट्रिक किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अगर आपका पहले कितना था, थीटा 90 था, फिर उसका कितना हो गया, 0 हो गया, तो भी आप यहाँ पे cos 0 और cos 90 की वैल्यू पुट करके आंसर्स निकाल सकते हो।
ठीक है, जितनी भी एनर्जी होती है एनर्जी इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे कह सकते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है डाइपोल की वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्वेश्चन लेते हैं। ए फ्री बॉल ऑफ मास 6 ग्राम कैरी ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1/3 × 10⁻⁷ व्हाट इज द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द charge that should be given to the second ball fixed 5 centimeter vertically below the formed ball so that the upper ball is stationary। तो मास आपको गिवन है, इधर आते हैं। इसने कहा है यहाँ पे एक निगेटिव, यहाँ पे नीचे क्या आंसर चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो m = 6g जो मास है, कितना गिवन है बॉल का, 6 ग्राम। जो 6 ग्राम की बॉल है वो स्टेशनरी रहनी चाहिए। आपकी कोई बॉल नीचे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, कोई बॉल अपवर्ड है, उस पर कितना चार्ज, वो उसका मास कितना है 6g। अब वो बॉल जो है वो स्टेशनरी कब रहेगी, जब मास, जो बॉल का मास है, अपर बॉल का जो मास है वो डाउनवर्ड लाई करेगा, बट दोनों चार्जेस पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब ये दोनों फोर्सेस, इसका मास और इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है, वो एक दूसरे को जब बैलेंस करेंगे, तभी आपका जो ऊपर वाली बॉल है वो स्टेबल पोजीशन में रह पाएगी। इस तरह से के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो इसका मास है mg वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए। जस्ट आपने 1/4πε0 q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, इसके मास के। यहाँ पे आप q2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। m आपको पता है, g आपको पता है 9.8 होता है, डिस्टेंस आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, q1 आपको गिवन है, k आपको कितनी होती है वैल्यू 9 × 10⁹ जो पुट करके आप सेकंड चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आप नीचे कोई इस चार्ज की बॉल रखोगे तो ऊपर वाली बॉल स्टेशनरी पोजीशन में रहेगी। इसी तरह का क्वेश्चन सेकंड ले सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैल्यू 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द फॉल टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट द सिचुएशन विच द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। ठीक है, जो बॉल है कौन सा डिस्टेंस इतनी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको कैलकुलेट द फॉल टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फॉल टाइम आपको बताना है। कॉन्स्ट्रक्ट द सिचुएशन विद फ्री बॉल अंडर ग्रेविटी। ठीक है, जो ग्रेविटी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हमें एग्जिस्टेंस नहीं मानना है, केवल किसके इफेक्ट में इसको कंसीडर करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में। क्यों, अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है, निगेटिव, नीचे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ऊपर की तरफ निगेटिव। तो ऊपर वाला जो निगेटिव चार्ज है वो बॉल को रिपेल करेगा नीचे की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज बॉल को अट्रैक्ट करेगा नीचे की तरफ। तो बॉल आपकी कैसे आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो इस पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो किसकी वजह से जनरेट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही जनरेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट आपको यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, s = ut + ½ at²। ठीक है, a कितना होगा, F/m, एक्सेलरेशन का होता है फोर्स बटे मास, फोर्स कितना है q × e/m। तो q की आपको वैल्यू पता है, e की आपको पता है, m की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से आपने a की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, s = ut + ½ at²। s कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ये रहा आपका 1.5 × 10⁻²। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, बाद में कितना हो गया +½ एक्सेलरेशन आपको पता है t, टाइम का स्क्वायर, तो टाइम आपका निकल गया। तो इतने टाइम बाद आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव पार्ट से पॉजिटिव पार्ट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक हम क्वेश्चन और लेते हैं। पेंडुलम की एक बॉल है जिसका मास कितना है 80 मिलीग्राम, कैरी ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, is at rest in a horizontal uniform electric field of 2 × 10⁴ volt per meter. Find the tension in a thread of the pendulum that the angle it make with the vertical। तो ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो वो कितना एंगल हो गया, आपने लेट कर लिया थीटा। हमेशा जो किसी भी बॉल का जो मास होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लाई करता है, तो कितना होगा mg। तो ये जो टेंशन इसमें जनरेट हो रहा है उसके ये वाला जो एंगल है, जो बॉल एक परपेंडिकुलर लाइन है, एक जो तार आप जो आपका वायर है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ये बॉल है, इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है, आपने लेट करा है। अब दो लाइन पैरेलल हैं, उनके बीच का एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है पैरेललोग्राम मेथड से। तो ये थीटा है, तो नीचे वाला एंगल भी थीटा होगा। तो इसके दो कॉम्पोनेंट हो गए, टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ और टी साइन थीटा नीचे की तरफ। तो ये टी साइन थीटा हो गया और ये टी कोस थीटा हो गया। अब जो टी कोस थीटा वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके मास के, क्योंकि किसी भी बॉडी का मास हमेशा
वर्टिकली डाउनवर्ड लाई करता है। तो टी cos थीटा इज इक्वल टू mg आपको पुट करना है। आपको क्या चाहिए, आपको एंगल थीटा चाहिए, ठीक है। तो टी cos थीटा इज इक्वल टू mg और टी sin थीटा कितना होगा, टी sin थीटा इज इक्वल टू QE। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो किसको बैलेंस कर रहा है, इसके टी sin थीटा कंपोनेंट को। Q इंटू ई है ना साइड में लिखा हुआ। तो इन दोनों को आप जस्ट डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। और QE डिवाइडेड बाय mg, Q आपको पता है, E आपको पता है, M आपको पता है, G आपको पता है, tan आप यहाँ पे रख के पुट कर सकते हो। तो tan थीटा कितना हो गया 0.51, और इसका जब tan इनवर्स करोगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, ठीक है। आप थीटा मिल गया, आप यहाँ से टेंशन भी निकाल सकते हो, टेंशन कितना होगा, टी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, या तो टी sin थीटा इक्वल टू QE में पुट कर दो, या टी cos थीटा इक्वल टू mg में भी आप पुट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन अराइज होता है कि सर tan इनवर्स 0.51 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी। अगर ये आपका आता है तो आपको पेपर में आपको गिवन होगा, ठीक है। इन वैल्यूज को याद करने की कोई जरूरत नहीं। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्रोटॉन इन द सेम फील्ड, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो होगा प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो जो उनका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इलेक्ट्रिक एट 30 डिग्री with the response to a uniform electric field of 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम एक्सपीरियंस ए टॉर्क। आपको डायपोल मोमेंट निकालना है, पी निकालना है, कितना हो जाएगा टॉ, टॉ इज टू पी साइन थीटा, पी आपने के टॉ बाई ई साइन थीटा, इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी आता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इसके चारों सेंटर्स पे 4 चार्जेस रखे हैं, पे माइनस क्यू रखा है, एक पे प्लस 2 क्यू, एक पे माइनस 2 क्यू और एक पे क्यू, ठीक है। आपको जो इसका क्यूब है ना, स्क्वायर है, जो आपका स्क्वायर है उसके जो सेंटर होगा उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अब हमेशा आपको एक चीज कंसीडर करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के से अवे होगी और निगेटिव चार्ज के टू वार्ड होगी, ठीक है। जो +2 क्यू है और जो +Q है इनसे तो अवे की तरफ होगी, इसमें डायरेक्शन गलत बनाई हुई है, इसमें होगी टू वार्ड द सेंटर। दोनों डायरेक्शंस कहां से होगी, +Q से सेंटर की तरफ, +2Q से सेंटर की तरफ। इसी तरह जो आपका नेगेटिव चार्ज है उससे पे कैसे होगी, सेंटर से -Q की तरफ, सेंटर से -2Q की तरफ। क्योंकि आपको एक ही चीज याद रखनी है, पॉजिटिव चार्ज से अवे की तरफ डायरेक्शन होती है, नेगेटिव चार्ज के टू वार्ड डायरेक्शन होती है, किससे, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो E1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, E2 की आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपको चारों की आप वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अब जो आता है डायरेक्शन आपको देखनी, हर जो पॉइंट है उनके बीच का एंगल कितना होता है, कि जो आपकी डायगोनल्स होती हैं जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं हमेशा स्क्वायर के लिए कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। अगर हम इसको एक्स और वाई एक्सिस में ब्रेक कर देते हैं तो सबके बीच में एंगल कितना होगा, 45 डिग्री का होगा, ठीक है। सबके बीच में एंगल कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। तो ई एक्स कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा, तो cos 45, E2 cos 45 माइनस E3। अब देखो E1 के लिए ऐसे होगा, जो E2 नीचे की तरफ है इसके लिए भी दोनों के लिए पॉजिटिव होगा, बट जो आपके लेफ्ट हैंड साइड दो वेक्टर्स हैं इनके लिए डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, और आप इसको सोल्व कर लेंगे। इसी तरह EY में आप ब्रेक करोगे, सबके लिए आप सोल्व करके दोनों का क्या करोगे, EX² प्लस EY² सोल्व करके आप आंसर निकाल लोगे। अगर आपको इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करने में, क्योंकि ये थोड़ा सा फिगर में थोड़ा सा गलत बनाया हुआ है, अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या इस तरह के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट में डालो। मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको, आप मुझे ग्रुप पे सेंड करो, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड हो तो मुझको मैसेज करना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप कर सकते हो, या आप मेरे वीडियो के नीचे ही जस्ट कमेंट डालो कि सर हमें इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सेपरेट 3 to 4 क्वेश्चन में इसी तरह के लूंगा, जिससे कि आप इजीली उसको स्टडी कर सको। ओके, तो 2 पॉइंट चार्जेस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +Q एंड दिस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। तो इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, जो इनकी लाइन है इस पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0। इसका मतलब क्या है कि जो दोनों इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे
वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ऐसा कब हो सकता है? जब या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों निगेटिव चार्ज हो। इसने पहले दिया हुआ है कि दोनों चार्जेस आपके पॉजिटिव है। तो अब इस केस में दो तीन केसेस बनेंगे, या तो पॉजिटिव चार्ज जो Q1 है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। सेकेंड, प्लस चार्ज के Q2 के राइट हैंड साइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, या इन दोनों चार्जेस के सेंटर में, सेंटर नहीं, इस दोनों चार्जेस के बीच में किसी पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। रियलिटी में तीन केसेस बनेंगे, ठीक है। बट जो आपने कहा है कि Q1 से लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो दोनों चार्जेस से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा और Q2 से भी अवे की तरफ होगा, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में लाई करेंगे, तो ये एडअप हो जाएंगे, कभी भी जीरो नहीं होंगे। इसी तरह Q2 से राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एडअप हो जाएगा और कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ इसी क्वेश्चन में एक प्लस होता और एक माइनस होता तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों पॉइंट्स पर जीरो हो सकता था। ये आपको पेपर में बिल्कुल कंसीडर करना है। अगर आपके दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो केवल इन दोनों चार्जेस के बीच में होगा। अगर इन तीन में दोनों में से एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किसी भी पॉइंट पर जीरो हो सकता है। Q1 के लेफ्ट हैंड पे भी जीरो हो सकता है, Q2 के राइट हैंड पे भी जीरो हो सकता है और Q1 Q2 के बीच में भी जीरो हो सकता है, ठीक है। फिर आप इस चीज को कंसीडर करके चलोगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 माइनस E2 जीरो का मतलब दोनों चार्जेस आपको क्या करना है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को इक्वल पुट कर देना है। तो के Q1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर इक्वल टू के Q2 R2 का होल स्क्वायर, के से के कट जाएगा। चार्जेस एक पे Q1 है एक पे Q2 है, डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर है, तो एक को आप x मान लोगे तो जो डिस्टेंस बची कितनी हो जाएगी 2 माइनस एक्स। तो जस्ट आप इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्सिस की एक है कि 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2x आएगा, एक 2 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2x। फिजिक्स में हमेशा ध्यान रखना है जब आप कभी भी अंडर रूट कर रहे हो तो राइट हैंड साइड वाले में प्लस माइनस जरूर लेना है, क्योंकि दोनों केसेस से आपका आंसर आ सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको कभी अंडर रूट किया और ओनली प्लस 2x ले लिया, नहीं, आपको प्लस 2x भी लेना है और आपको माइनस 2x भी लेना है। फिर आपको उसको सोल्व करना है, प्लस 2x लिया, माइनस 2x लिया, प्लस डिस्टेंस कितनी आ गई 2/3, एक किया लेगी माइनस, यहाँ पे नेगेटिव डिस्टेंस नहीं हो सकती है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस 2/3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जिस टॉपिक में आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये लाइव क्लासेस नहीं है, कभी कभी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उससे रिलेटेड आपकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप उसको और अच्छे से समझा सकूं। अगर फिर भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ रही है तो मैं लाइव आकर आपकी हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आप बाहर स्टडी नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब बेस्ड एजुकेशन बहुत अच्छा टाइम है कि आप इस पर स्पेंड करें और अपने आप की फिजिक्स को और इम्प्रूव करें, ठीक है। इसी के साथ मेरा सेकंड लेक्चर कंप्लीट होता है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडी।